COVA has been organizing a very special occasion called Sambandh, where students from colleges, students from schools take a theme on peace and peace building and do mono acts, small plays, and these are, and then hundreds and hundreds of children, hundreds and hundreds of youth participate in these celebrations, in these cultural occasions. In the process, building peace, building harmony, building understanding between communities. कोवा का क़याम फ़िरक़े वाराना हम आहंगी कौमी यकजहती के लिए अमल में आया था। इसके तहत फ़िरक़े वाराना यकजहती और अहम आहंगी के लिए जिन एक्टिविटीज़ किए जाते थे, जो एक्टिविटीज़, उसमें एक अहम ये थी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स मुनक़िद करते थे मुख्तलिफ़ सेंसिटिव एरियाज़ में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और दोनों कम्युनिटी के मिक्स प्लेसेस जो है सेंसिटिव वहीं होना है। हम बताते थे कि नहीं वो फ़लाँ मुकाम पे प्ले ग्राउंड्स है, वहाँ फैसिलिटीज़ है, बोल तो नहीं, दोनों कम्युनिटी के बच्चे उसमें रहना और वो सेंसिटिव एरिया रहना। तो इस तरीके से ओल्ड सिटी के मुख्तलिफ़ सेंसिटिव एरियाज़ में गेम्स एंड स्पोर्ट्स मुनक़िद किए जाते थे, जिसके ज़रिए से दोनों कम्युनिटी के बच्चे, नौजवान बच्चे एक जगह जमा होकर खेल कूद के ज़रिए से हम आहंगी कौमी यकजहती की तरफ राग़िब होते थे। दूसरी एक्टिविटी ये थी कि स्पोकन इंग्लिश, ये एकेडमिक एसएससी के कोचिंग क्लासेस, उसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी होते थे, जिसके ज़रिए से वो भी दोनों कम्युनिटी के मिक्स और सेंसिटिव इलाके में होते थे। तो उसके ज़रिए भी वो लोग कोर्स में एक जगह मिल के काम करते थे। इस तरीके से प्रैक्टिकल यानी अमली तौर पे इक़दाम करते हुए कौमी यकजहती और फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को क़रीब लाया गया लोगों को। इस तरीके से पुराने शहर में अमन क़ायम हो सका। इन चंद ख़यालात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपने एक जहानुमा में एक प्रोग्राम रखा था जिसमें स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया था। मुझे कहते हैं दिस इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग द वर्क। वो वहाँ पर जो है बच्चों को आप देख रहे थे, मैं उस प्रोग्राम को अटेंड किया था। आई वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 3 आवर्स। मैं जिस तरह से बच्चों का देख रहा था, आपने हर टॉपिक को उसमें आपने एड्रेस किया था। वहाँ पर पॉवर्टी को एड्रेस किया था, बजटिंग को एड्रेस किया था, और जो है सीनियर सिटीजन्स पे भी आपने बात की थी। आई फील दैट कि जो जहाँ पे बच्चों को आपको ग्रूम करना चाहिए, शायद हम लोग आने वाले समय में अगर हमको कहीं भी कोई इस तरह से कोई रॉयट्स वगैरह ना हो, पीस चले जाए, पीस आनी चाहिए, तो ये है जो हमारा कमिंग जनरेशन है उनको सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई फील दैट कि इट शुड बी फ्रिक्वेंटली, इट शुड बी कंडक्टेड, एंड हर मंडल में ये होना चाहिए। Greetings everyone. It's a real pleasure to be a part of this celebration. First of all, congratulations to COVA on completing 30 amazing years. That's such a huge milestone, and one that speaks volumes about the impact COVA has made over the years. I'm one of the many people whose journey has been shaped by COVA. I was introduced to the organization during my college days at St. Anne's, Hyderabad between 2009 and 12.
Through Dhwani, I got involved in many programs, especially their annual Sambandh event, which I loved volunteering for. As a part of COVA, I also attended the Youth Peace Conference in Chandigarh, which was my first chance to connect with students from across South Asia. But the experience that really stayed with me was COVA's Mock Youth Parliament in 2011. We learned how the parliament works, not just in theory, but by actually doing it. That year, the Lokpal bill was making national headlines, and we studied it closely, debated it, and even drafted our own version. I was honored to be selected as the Prime Minister in our mock parliament, and eventually we presented our ideas in Delhi to actual MPs, ministers, and legal experts, meeting leaders like Srimati Nirmala Sitharaman ji, Prashant Bhushan ji, Swami Agnivesh ji, Srimati Brinda Karat ji, and attending a live parliament session was surreal. An unforgettable experience. It gave me the confidence to pursue my higher studies in Delhi and shape my journey as an academician today. So, thank you, COVA, for the platform, the mentorship, and the belief in young people. You made a lasting difference in my life, and I'll always be grateful. Thank you. Hi guys, my name is Vijayashree and I'm an alumni of St. Anne's Degree College, Mehedipatnam, and I have been a part of COVA since 2018 and who has helped me a lot to enhance my skills and talents. And I have also been Quizmaster for Samman program, and also I have taken part in the panel meeting with Ahmednagar Corporator for Sustainable Development Goals. That means we'll have to discuss about a lot of things, how to organize and also how to initiate the program in their locality, which would help the underprivileged people to have a good living. And yes, it was a great experience to have a lot of people there and discussing a lot of new things there, and that helped me to gain my confidence, my self-esteem. And thank you so much for COVA organization for being a good part in my life during my journey till now. Thank you. Hi, I'm Ujjwala. I'm the coordinator of Childline Project 1098. I worked in COVA. So we used to work for the children, runaway children, missing children, professionally sex workers and drug addict cases and all that. So during my work, we met with a drug addict case like Eraser Whitener. So when we saw children are laying on the roads, when I approached the children were very badly addicted to the drug addict. Then immediately I have gone to the shop owners of that community. Then we asked us to stop that. Then immediately they did not respond properly to us because they said that is their job. Then immediately I went to City Civil Court. I told all the things what has happened in the field. Then I have given application to the City Civil Court judge. Then they helped us to approach High Court. Then immediately I have given application to the High Court also. It was very tremendously what has happened, They have given orders to the owners of the shop not to give Eraser Whitener below 18 years. So it was very good achievement for us. I'm full of admiration for Team COVA, who have been doing excellent work over the years in terms of promoting harmony, interfaith dialogue, focusing on youth, most important of all. We know they need guidance and compassion, and COVA has been doing very imaginative work with youth and teens, and also trying to promote people to get together, communities, their festivals where people are encouraged to share with each other. There are many very good initiatives, and I congratulate Team COVA and Mazhar Hussain, who has all the passion, dedication and perseverance over the years. May they continue with their good work. All the best. एक बार बोल जाए ना बस खत्म, अब कुछ भी नहीं हो सकता। पानी और डेंस का काम बाद में करेंगे। बाहर निकालो, बाहर निकाल। इससे पूछ के देख क्या तूने? जरूरत
कुछ है, बिना आया सभा को बुलाए अब कोई भी काम तुम नहीं करवा सकते। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान पठान। कोशिश ट्यूटर ग्रुप मैंने जब ज्वाइन किया था तब मेरा पहला प्ले था कि सबसे सस्ता कुश। ये प्ले स्टार्ट होते ही हमारे ऊपर पत्थर बरसने लगे और किसी ने कहा कि तुम हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम कर रहे हो। हमने कहा भाई हम लोग यहीं पर है, पूरा नाटक देखिए, उसके बाद आप लोग एक्शन लीजिए। जब हमारा नाटक ख़त्म हुआ, जिसने पत्थर मारा वो आकर हमसे माफ़ी मांगा और कहा आप लोग कम्युनल वायलेंस के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कोशिश ट्यूटर ग्रुप 1998 में स्टार्ट हुआ और इसमें फ्री ट्रेनिंग होती थी सैटरडे संडे बच्चों के लिए। 30 से 35 बच्चे आते थे ट्रेनिंग के लिए। हम लोग ये ट्रेनिंग लेकर स्टेट प्ले करते थे, स्टेज प्ले करते थे। हम लोगों ने तकरीबन 2000 से ज़्यादा स्टेट प्ले किया है, 400 से ज़्यादा स्टेज प्ले किया है। स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने पार्टिसिपेट किया है कॉम्पिटिशन्स में, जैसे कि पंजाब, कलकत्ता, उड़ीसा, केरला, जहाँ पे हमें बेस्ट से बेस्ट प्राइज़ आया है। हमारे जितने भी नाटक होते थे वो पूरे सोशल इश्यू पे होते थे, जैसे कि TBS से जंग, चाइल्ड लेबर, कम्युनल हार्मनी और बहुत सारे ऐसे प्लेस थे जिसे हम सोशल इश्यू के सीरियस प्ले को कॉमेडी में लेकर पब्लिक के सामने पेश करते थे। पब्लिक उसे बहुत एंजॉय करती थी, समझती थी और पब्लिक में ये शऊर आता था। हमारा एक प्ले है जंग चाहिए या अमन। इस प्ले को ETV उर्दू ने रिकॉर्ड कर 54 कंट्रीज पे ब्रॉडकास्ट किया था। कोशिश के कुछ मेंबर थे जिन्हें थिएटर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आज वो मूवीज़, सीरियल्स और यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। जब मैं कोशिश ट्यूटर ग्रुप ज्वाइन किया, जब मेरी एज 18 थी, मेरे एक पान शॉप पे काम करता था। गोवा से मैं अपना 10th क्लियर किया, एजुकेशन पूरी की और मैं सोशल इश्यूज़ पे और बहुत सारे प्लेस भी किया हूँ, TV सीरियल्स, फिल्म्स। और आज मैं स्कूल्स, कॉलेजेस, NGOs में जाकर थिएटर क्लासेस भी लेता हूँ। ये हुआ तो कोशिश की वजह से और कोवा की वजह से। थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कई दिनों से टेंशन कम हो रहा है। क्रिकेट मैचेस को खेलते हुए और क्रिकेट मैचेस को देखते हुए वहाँ के लोग अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। मैंने सुना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर आपस में बातचीत शुरू करने वाले हैं, तिजारत बिजनेस बढ़ाने के लिए और वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और ये भी सुना है कि वीजा भी आसान हो जाएगा, लोग एक दूसरे के मुल्क में आसानी से आ जा सकेंगे। अगर ऐसा होगा तो इनकी दोस्ती बढ़ जाएगी, लड़ाई का चांस कम हो जाएगा और हमारा भी सर उसका भी प्लान है। अगर वो मिलते भी है तो हम उनके हालात को सुधरने नहीं देंगे और उनके मुद्दों को हल करने नहीं देंगे। कुछ बम ब्लास्ट, कुछ टेरर अटैक्स, बॉर्डर पे थोड़ी फायरिंग तो शुरू होने दीजिए और देखिए वो दोनों अपने सारे मुद्दे और अग्रीमेंट्स को बाजू में रखकर अपने पास हथियार लेने दौड़े चढ़ाएंगे और अपना फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, फायदा